اعتماد کا ووٹ لیں گے. ایوان کا اجلاس ان 12:15 پر طلب کیا گیا ہے. اسلام آباد میں تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار. اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور زیادہ مضبوط ہوں گے. اپوزیشن جماعتیں ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست چاہتی ہیں. پیسوں کے بلبوتے پر ایوان میں آنے والے اپنا مفاد ہی مقدم رکھیں گے. وفاقی وزراء کی میڈیا سے گفتگو. ٹیکس اصلاحات کے ذریعے کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آٹومیشن کا نظام متعارف کرایا جائے گا. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ٹیکس نظام سے عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہ پڑے. وزیر اعظم عمران خان. حکومت نے عام آدمی کو کورونا سے بچانے اور معاشی تحفظ کی فراہمی کے لیے جامع اقدامات کیے. مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے کی کوششوں کے ثمرات جلد عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے. کشمیری عوام پر بھارتی مطالب کو ہر عالمی فورم پر اجاگر کیا. دنیا کی ضمیر کو جگانے کے لیے میڈیا کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف الدین. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چولستان کے صحرا میں تربیتی مشقوں کا معائنہ. آرمی چیف کو 2 ہفتوں پر محیط ضرب حدید پر بریفنگ. آرمی چیف کی مشقوں کے معیار کی تعریف. کور کی سطح پر مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں اور فارمیشن کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے. اعتراض کی صورت میں آئینی راستہ اختیار کیا جائے. الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے. اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ بات کی جائے. الیکشن کمیشن. پاکستان اور بھارت کی جانب سے حالیہ فائر بندی کے بارے میں کمیٹی کے ٹویٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. تمام پاکستانی بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا احترام کرتے ہیں. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دے کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کو بے نقاب کرنا چاہیے. پارلیمانی کشمیر کمیٹی کی وضاحت. نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری. چیئرمین حریت فورم میر باعث عمر فاروق پھر نظر بند. انہیں 20 ماہ کی نظر بندی کے بعد گزشتہ روز رہا کیا گیا تھا. سری نگر میں پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے. قابض فوج کا پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال. متعدد افراد زخمی. بھارتی کسانوں کے احتجاج کے 100 دن مکمل. کل اہم شاہراہیں بند کرنے کا اعلان. حکومت سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں. کسانوں نے دھرنوں میں مستقل طور پر رہنے کی تیاریاں کر لی. ملک بھر میں کورونا سے مزید 52 افراد جان کی بازی ہار گئے. 1579 میں وائرس کی تصدیق. عالمی سطح پر وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 25,83,000 سے زیادہ ہو گئی. 11 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر. اسلام آباد میں ڈیوس کپ ورلڈ کپ 1 ٹائی. جاپان نے پہلے دونوں سنگلز مقابلے جیت لیے. کائچی یوشیدا نے پاکستان کے احسام الحق کو 6-4 اور 7-6 سے ہرایا. یوسوکی واتانوکی کی عقیل خان کے خلاف 6-3 اور 6-2 سے کامیابی. کل دونوں ٹیمز واحد ڈبل اور ریورس سنگلز میں مد مقابل ہوں گی. میچز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پی ایس ایل میں شریک غیر ملکی کھلاڑیوں کا شائقین کرکٹ کے نام پیغام. ٹورنامنٹ دوبارہ شروع ہونے پر پاکستان آنے کو تیار ہیں. شائقین کرکٹ مایوس نہ ہوں. اچھی کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھیں گے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بین کٹنگ اور ڈیل سٹین کا ویڈیو پیغام. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صدف علی خان. اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد علی. ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. منزل بدلی بدلا رستہ بدلا خیبر پختونخوا. صوبے کی 100% آبادی کے لیے 100% مفت علاج.
सेहत सहूलत प्रोग्राम से अस्पतालों में दाखिले की शरह में 270% तक इजाफा। दूर दराज वादियों और आबादियों को खुशहाली के जारी सफर से जोड़ने के लिए सवात एक्सप्रेसवे पहले मरहले की तकमील के बाद चकदरा से फतेहपुर सवात तक 81 किलोमीटर तवील 4 लेन सवात एक्सप्रेसवे का आगाज। सूबे में जम होने वाले कबायली अजला को तरक्की के अमल में शामिल करने के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबा। पहले मरहले में 142 अरब रुपए से 127 नए मंसूबों की 3 सालों में तेज तर तकमील, और हर वो सहूलत जो सूबे के दीगर इलाकों में मौजूद है। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। BOP तकवा SME फाइनेंसिंग, कारोबार, खाम माल, तैयार प्रोडक्ट्स और कारोबारी जगह खरीदने या तामीर करने के लिए रिवा से पाक फाइनेंसिंग। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। जी बच्चों, कर लिया होमवर्क? जी। जरा मुझे स्कूल की डायरी तो दिखाएं। हल्का बस्ता एक्ट, क्या अब रोजाना सारी किताबें स्कूल नहीं लेके जानी? टीचर ने कहा है कि इस डायरी के मुताबिक किताबें लेके आनी है। वाह भाई, यानी अब हर बस्ता होगा हल्का बस्ता। हल्का बस्ता एक्ट 2020 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा जहां है अब हर जमात के बस्ते का वजन मुकर्रर। हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। हल्का बस्ता कामयाबी का रास्ता। महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एतमाद का वोट लेंगे। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12:15 पर तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें एतमाद के वोट के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़रा ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म के जुर्रतमंदाना फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्हें अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तफसील यासिर हुसैन से। वफाकी वजीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैसों के बलबोते पर ऐवान में आने वाले अपना मफाद ही मुकद्दम रखते हैं। हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो, खुले तरीके से हो। जो भी ये बहसें हो रही हैं कि जी कौन बिक गया कौन नहीं बिका, ये सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता। अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिसमें कि कोई सवालात ना उठें। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। हमारी इस वक्त जो पूरी इस वक्त स्ट्रेंथ है पार्टी की, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल है। कल पार्लियामान के अंदर 179 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को एतमाद का वोट देंगे, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम वाक़या होगा। कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इतना ज़रूरतमंदाना इक़दाम नहीं किया। ये वोट को इज्जत दो के बजाय आज से इनको PDM को रात से अपना जो नारा है वो नोट को इज्जत दो लिखना चाहिए। मादने खुसूसी इत्तलाआत पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार की नहीं अक़दार की सियासत करते हैं। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तमाम हमारे इत्तेहादी जो हैं उन्होंने गैर मुतज़लज़ल वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पे एतमाद का इजहार करके अपोजिशन की सफ़ों में भूचाल पैदा कर दिया। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को, जो उन्होंने क्रीज से बाहर आके छक्का लगाया और जिसके ज़रिए अपोजिशन के छक्के छुड़ा दिए हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म की जुर्रत, बहादुरी और दिलेराना सियासत की
अहम मिसाल है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके सुरखरू होंगे। यासिर हुसैन, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एतमाद के वोट के बारे में आइन और कौमी असम्बली के रूल्स क्या कहते हैं, जानते हैं नमूद मुस्लिम से। 18वीं तरमीम से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब कौमी असम्बली में इलेक्शन के बजाय सदर मुमलिकत की जानिब से नामजदगी के बाद एतमाद का वोट लेने से होता था। आइन की मौजूदा शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब बाकायदा इलेक्शन के जरिए होता है, जिसके बाद एतमाद के वोट की जरूरत नहीं होती। आइन पाकिस्तान में 2 मुकामात पर एतमाद और अदम एतमाद के वोट की बात की गई है। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 7 में कहा गया है कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट देने का कह सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसी आइनी शिक के तहत ईवान से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। कौमी असम्बली के क़वायद ज़वाबित और तरीक़ाकार में दर्ज रूल नंबर 36 में कहा गया है कि वोटिंग का अमल डिवीजन के जरिए किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के लिए वोटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर कौमी असम्बली के 2nd शेड्यूल के तहत होती है, जिसमें हर रुकन करारदाद के हक या मुखालफत के लिए अलहदा हो जाता है। इस सारे अमल में इब्तदाई तौर पर घंटियां बजाई जाती हैं, जिसके बाद ऐवान के तमाम दरवाजे वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक बदस्तूर बंद रहते हैं। इस इंतखाब में वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान की कुल तादाद की अक्सरियत यानी कम अज कम 172 वोट दरकार होते हैं। इस वोटिंग के अमल के बारे में स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत को बाकायदा तौर पर आगाह करते हैं और ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में भी शाया किया जाता है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मारूफ सियासी शख्सियत मुनीर अहमद खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर मखदूम खुसरो बख्तियार और वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में मुनीर अहमद खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तकदीर और मुस्तक़बिल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के हाथ में होने से महफूज और रोशन है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुनीर अहमद खान को पार्टी में खुशामदीद कहा और उनके फैसले को सराहते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और अफराती दर समेत तमाम मसाइल की वजह साबिक़ हुकूमतों की वजह से जानिब से की गई लूटमार और करप्शन है। मेरा मिशन हर तरह की करप्शन का खात्मा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुनीर अहमद खान ARD के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात होने के अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों में मुशीर और दीगर मरकजी ओहदों पर फाइज रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि टैक्स निज़ाम को इस तरह तरतीब दिया जाए कि कारोबार में आसानी हो और मईशत तरक्की करे। इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का मकसद इस निज़ाम को आसान बनाना और इसमें मौजूद खामियों को दूर करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑटोमेशन का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, टैक्स इकट्ठा करने वालों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स के तवाबीदी इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि टैक्स चोरी के अवामिल और फ्लाइंग इनवाइसेस की शिकायत के तदारुक पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस अमर को भी यकीनी बनाया जाए कि टैक्स निज़ाम से अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ न पड़े। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौजूदा दौर में डिजिटल मीडिया की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि समाजी मसाइल, खुसूसी अफराद को कौमी धारे में लाने, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अखलाकियात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐवान सदर में डिजिटल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अफराद से गुफ्तगू में सदर ममलिकत ने कहा कि मीडिया की ताकत और जिम्मेदाराना किरदार में तवाज़ुन तामीर और तरक्की के लिए बहुत अहम है। एक सवाल पर सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क के तमाम माशी अशारिये मुस्बत रुझान को ज़ाहिर कर रहे हैं। कोरोना के दौरान हुकूमत ने दुरुस्त हिकमत अमली के तहत आम आदमी को वबा से बचाने और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जामे इक़दाम किए। सदर ममलिकत ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर के मसले और कश्मीरी अवाम पर भारतीय मसालिम को हर आलमी फोरम पर उजागर किया है। इस बारे में दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए मीडिया को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। के लिए जो अलम उठाया हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाया हुआ है और दूसरी तरफ स्याही की अंधेरे का जो अलम है CDM ने उठाया हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को मजबूत कोई नहीं देखना चाहता। इलेक्शन कमीशन को वो इक़दाम उठाने चाहिए जिससे उनकी आज़ादी और गैर जानबदारी मुसलमा तौर के ऊपर सामने आए। इंतखाबात में शफाफियत से पार्लियामेंट का वक़ार बढ़ेगा। करप्शन को फरोग़ देने का एहसास मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी अमल में बदउनवानी रोकने की बात की।
इंसाफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद PTI की सियासत का अहम सुतून है। वफाकी वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन जमातों की तरजीह जमहूरियत नहीं, ज़ाती मफाद और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ है। अपोजिशन पार्टीज बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हों और उसमें पैसे का कोई असर रसूख न हो, क्योंकि ये उनकी बुनियादी फलसफे के खिलाफ जाता है। बुनियादी जो जंग है वो यही है, एक तरफ मफादात हैं ज़ाती ग्रोही और दूसरी तरफ मुल्क के अवाम के मफादात हैं। कौम को हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा बयानिया था सेनेट और जनरल इलेक्शंस के बारे में, वो अब काफी वाज़ेह हो गया है। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन कमीशन समेत तमाम कौमी इदारों का बेहद एहतराम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उसका जो मतलब है वो तो यही है कि हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मिल करके हमें जरूरी है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जिससे इलेक्शन में धांधली रुक सके, शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सके। हमसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को मजबूत कोई नहीं देखना चाहता। नौ मुंतखब सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हर आईनी और कानूनी इदारा आज़ाद और खुद मुख्तार हो। आइन के तहत हुकूमत का एक फर्ज होता है कि वो उनकी मदद करे। ये कहना कि आप किसी अदारे पे तनकीद नहीं कर सकते, उनके फैसलों पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते, ये भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्बत तनकीद से बेहतरी आती है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने एतमाद के वोट में वज़ीर आज़म की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। ये ऐलान वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में किया गया। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुशावरत हुई और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़रा आज़म स्वाति, जुबैदा जलाल, रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा खालिद खान मक्सी, सेनेटर अहमद खान समेत दीगर शरीक थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। इलेक्शन कमीशन अली गिलानी से मुतालिक मुबैना वीडियो पर समाअत 11 मार्च को करेगा। PTI की कमल शोजब और फारूक हबीब ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दरखास्त दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने इजरात से मुतालिक एलामिया जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है जो आइन और कानून की रोशनी में अपने फराइज सरअंजाम देता है। एलामिया में कहा गया है कि कमीशन के फैसलों पर एतराज की सूरत में आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए। इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। एलामिया में कहा गया कि कमीशन आज़ादाना फैसले करता है ताकि पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत को फरोग मिले। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ बात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक आसान तरीके से अंजाम देता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहराए चोलिस्तान में फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा किया। आर्मी चीफ को 2 हफ्ते तवील ज़रब हदीद मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों से दिफाई इस्तेदाद कार में इजाफा है। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की जंगी तैयारी और तरबियती मेयार पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए जवानों और अफसरों की पेशा वाराना महारतों और अज़्म को सराहा। बारह आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की लॉजिस्टिक तंसीबात का भी मुआयना किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। शहरियार खान आफरीदी की सरबराही में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी ने वजाहत की है कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से हालिया फायरबंदी के बारे में कमेटी के ट्वीट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और तमाम पाकिस्तानी बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का एहतराम करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कमेटी ने अपने ताज़ा ट्वीट में कहा कि गुज़श्ता ट्वीट में सैयद अली गिलानी से मुतालिक कोई चीज नहीं थी और तमाम पाकिस्तानी इनका मुकम्मल एहतराम करते हैं। ट्वीट में कहा गया कि जिस अकाउंट के बारे में गैर जरूरी तौर पर शोर मचाया जा रहा है उसे चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी नहीं चला रहे हैं। पैगाम में जोर दिया गया कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को फरोग देकर मखसूसा जम्मू कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी को बेनकाब करना चाहिए।
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस की तरफ से श्रीनगर में पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से मुताबिक अफराद जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए। नौजवानों ने हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक की तस्वीर भी उठा रखी थी, जिन्हें एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक 4 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नजरबंद है। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन्स का बेदरगाही इस्तेमाल किया, जिससे एक सहाफी समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें कई घंटों तक जारी रहीं। हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद करने के भारतीय हुकूमत के आमराना इकदाम की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि काबिज इंतजामिया के जालिमाना फैसले से कश्मीरी आवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और मीरवाइज उमर फारूक की घर में नजरबंदी की शदीद मजम्मत की है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने बडगाम में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआवजा-राई के खात्मे के लिए जंगबंदी मुआहदा खुशाइंद है, ताहम तमाम तनाज़ात खुसूसन मसला कश्मीर के हल के लिए नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। नाज़रीन, भारतीय किसानों को एहतजाज को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। कल से अहम शाहराहें बंद करने का ऐलान किया गया है। किसानों ने एहतजाज के 100 रोज मुकम्मल कर लिए हैं। मोदी सरकार ने कमजोरी का मुजाहरा करते हुए दिल्ली के धरनों में मुजाहिरीन के लिए पानी की सप्लाई रोकने का अमल शुरू कर रखा है। काश्तकारों ने अपने वाटर पंप लगा लिए हैं। किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार से बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। मोदी सरकार पर किसानों का गुस्सा बचा है, उन्हें सर्दी, गर्मी और बारिशों में रखा गया। मुजाहिरीन ने धरनों में मुस्तकिल रहने के लिए तैयारियां कर ली। सिंघू बॉर्डर पर लकड़ी की जगह लोहे की रॉड लगाने शुरू कर दिए। गर्मी से बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं, पंखे और एसी लगाए जा रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि अगर भारतीय वजीर आज़म मोदी के मंसूबे पर अमल हुआ तो बड़ी कंपनियां सब कुछ खा जाएंगी। भारत में अनाज का बहरान पैदा हो जाएगा। ब्रेट ने साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाने की मंजूरी दे दी है। एनसीओसी के मुताबिक मंजूरी के बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर्ड 60 साल से ज्यादा तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कोविड वैक्सीन सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। मजीद तफसीलात बताएंगे राहील अंसार। कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद में एक मरतबा फिर तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 1579 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 5,87,000 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मोहलिक वबा से 52 अफराद जान की बाजी हार गए। इस तरह अब तक कोरोना से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 13,128 हो गई। मुतासरा अफराद में से 5,56,769 सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 11 करोड़ 61 लाख से तजावज कर गई। वायरस से अब तक 25,80,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। मोहलिक वायरस से निपटने के लिए अमेरिका, चीन, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद 5,33,000 जबकि भारत में 1,57,584 हो चुकी है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 3 रोजा सियाहती और फैमिली मेले का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडर्स और पैराट्रूपर्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तफसील रिजवान आरस से। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद सियाहती और फैमिली मेले की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में शानदार मेले का इनेकाद किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि टूरिज्म को बिलखुसूस वो करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि बाहर के और अपने मुल्क के बारे में भी आप सब इंटरनल एंड एक्सटर्नल टूरिज्म, इससे जॉब्स भी पैदा होंगी, इससे नई नई वो भी लगेंगी, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह सारा बहुत रिलेटेड है। हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि सियाहती मेले में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हैं। इस तरह की तकरीब से सियाहत के शोबे को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि टूरिज्म पाकिस्तान हमें प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान में, तो ये एक मगनातीस हम लोग बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को टूरिज्म के लिए, और हर जगह
ये चीज हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि सियाहत के फरोग के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, इस सेक्टर की प्रमोशन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इनके मुआवन साबित हो। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि पहली बार स्पोर्ट्स और सियाहती शोबा मिलकर फेस्टिवल का एहतमाम कर रहे हैं। हमारी खवातीन जैसे हर दूसरे फोरम्स पे हर सेक्टर में अपना नाम बना रही हैं, यकीनन एक स्पोर्ट्स में भी उन्होंने अपना नाम बनाया है। मुआवने खुसूसी जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि 3 रोजा मेले में बच्चों और खवातीन की दिलचस्पी के लिए भी इवेंट्स का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान की बुनियाद है टूरिज्म की, कि फैमिली टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, वो इस 2-3 दिन में आपको नजर आएगी। इस तरह की तकारीब से पाकिस्तान की सियाहत को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग हासिल हो रहा है। डिफरेंट हाइट पे हम लोग जंप कर रहे होते हैं। हम लोग 25,000 से लेकर 30,000 तक फीट से जंप कर रहे होते हैं। ये हमारे एयरक्राफ्ट पे और इन चीज़ों पे अफेक्ट कर रहे होते हैं कि आप कौन सी चीज़ किसके साथ जंप कर रहे हैं। ये थ्रिलिंग इवेंट जो है ये एक तरफ तो लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये इस चीज को भी हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान के लोग कितने वाइब्रेंट हैं। 3 रोजा इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल में पैराग्लाइडर्स और पैरा ट्रूपर्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया। टूरिज्म फेस्टिवल में इस्लामाबाद और गिरदोनवा के शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात हुई। वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। वफाकी वजीर अली जैदी ने सेनेट इंतखाबात में ताउन पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमती मामलात से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बतौर इत्तेहादी हुकूमती मामलात में तहरीक इंसाफ की मुआवजत कर रहे हैं। माजी की तरह आइंदा भी इश्तराक और ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वजीर समंदरी उमूर अली हैदर जैदी ने कहा है कि हुकूमत कारोबार को बढ़ाने के लिए सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम उठाएं जिनके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सनतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने और उन्हें हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिश है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्की दरामदात में कमी जबकि बरामदात में इजाफा हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 8 माह में हदफ से ज्यादा रेवेन्यू जमा किया है। मजीद तफसीलात बताएंगे जीशान अहमद खान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल जुलाई से फरवरी तक 2,916 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया। इसी तरह पिछले साल इसी अरसे के हासिल करदा नेट रेवेन्यू 2,750 अरब रुपए के मुकाबले में 6% ज्यादा है। FBR के मुताबिक 28 फरवरी तक टैक्स साल 2020 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 26,23,000 हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 8% ज्यादा है। रवा माली साल में अब तक 152 अरब रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसने पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें आप ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बतदरीज इस साल हर महीने की बुनियाद पे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसकी बुनियाद पे टैक्स की कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज होती है। अब स्मगलिंग रुक गई है तो वो सारा जो गुड्स जो है अब वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ रहा है और वो टैक्सेस उससे भी वसूल किए जा रहे हैं। FBR ने 21 लाख टैक्स गुजारों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ मुंसलिक होने वाले बड़े रिटेलर्स की तफसीलात भी जारी की हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मुशीर तिजारत और सरमायाकारी अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान तिजारत और तरक्की के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी CTD की सरबराही के लिए मुंतखब हो गया है। ये इंतखाब साल 2021 के लिए है। ये कमेटी 1965 में तरक्की पसीर ममालिक की माशी तरक्की के लिए बनाई गई थी। मुशीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत में CTD तरक्की पसीर ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने के लिए काम करेगा। मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल के दौरान पहली मर्तबा डॉलर की कीमत कम तरीन सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में कीमत खरीद 156 रुपए रही, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में भी 558 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अहमद। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली से दोबारा एतमाद का वोट लेने के ऐलान का असर बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ा और 100 इंडेक्स ने आज कारोबार के आगाज से ही बुलंद सतह पर ट्रेड किया।
आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम रही और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए 75 पैसे रही, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 175 रुपए रही। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत गिरने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 97 ममालिक से अब तक 92,500 अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिसका बराह रास्त असर ज़र मुबादला पर पड़ा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 45,837 पर बंद हुआ और मार्केट में तिजारती हजम 31 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा रहा। बाजार हिस्सेस में 243 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 100 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात की। श्रीलंकन फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स आमद पर उन्हें सलामी पेश की गई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि दोनों ममालिक के फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन मज़बूत दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने श्रीलंकन फ़ज़ाइया की 70वीं सालगिरह के सिलसिले में मुनक़िदा परेड और कलर अवार्ड की तकरीब में भी शिरकत की। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान आसियान मुल्कों के साथ अपनी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में आसियान ममालिक के सफीरों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान विजन ईस्ट एशिया पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आसियान ममालिक के साथ सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत और समाजी और सकाफती शोबों में ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए काविशें कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान अगले माह बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पन बिजली मंसूबों की तकमील से सूबा बिजली की पैदावार में खुद तब्दील हो जाएगा। इजलास में बताया गया कि 300 मेगावाट का बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से जिला मानसहरा में दरियाई कुनहार पर तामीर किया जा रहा है, जिसका तखमीना लागत 85 अरब रुपए है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर है, लेकिन इसे मेहनत और दयानतदारी से मजीद बेहतर करना है। उन्होंने तरक्की पाने वाले अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने तजुर्बे से बेहतरीन खिदमात फराहम करें। इस मौके पर वज़ीर आला ने सिंध पुलिस में तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए और उन्हें मुबारकबाद दी। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयटा में लाइब्रेरी और किताब मेले का इफ्तिताह किया और वज़ीर आज़म बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर 31वें मिड करियर कोर्स के शुरुआत से खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन सई ने कहा कि सरकारी अफसरान मुल्क कौम का असासा हैं और हुकूमत इनको दौरे जदीद के तकाज़ों से हमआहंग करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर समान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा दिलेराना फैसले किए हैं और कल एतमाद का वोट लेकर इस बात को साबित करेंगे कि पीटीआई अवाम की मकबूल तरीन जमात है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की दौलत लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे और उन्हें NRO नहीं दिया जाएगा। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास राना तनवीर हुसैन की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वजारत इंसदाद मनशियात के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़िमनी ग्रांट्स का रिवाज बढ़ रहा है, इदारों और महकमों को अपनी जरूरियात का इल्म ही नहीं होता। वजारत रकम तलब करती हैं लेकिन खर्च नहीं होता। ये खराब बजट की बदतरीन मिसाल है। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। तिब्बी आलात के एक्सपोर्टर्स इसे माशी लिहाज से मजबूत पाकिस्तान की तरफ मुस्बत कदम करार दे रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही है लाहौर से हुमा सदर। दांतों का ताल्लुक सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट से नहीं बल्कि पूरे जिस्म की सेहत से है। तरक्की पजीर मुल्कों में दंदान साजी में अताइयों का अमल दखल बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ इदारे क्लियर पाथ ऑर्थोडोंटिक्स जैसे भी हैं जिनकी दंदान साजी से मुतालिक बनाई गई मसनूआत अमेरिका जैसा मुल्क भी बरामद करता है। ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह बनाना इट्स नॉट इजी, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और हमारी रिसर्च रोज हो रही होती है इस फील्ड से मुतालिक। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नई गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक
انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے ایکسپورٹرز کو. کارپوریٹ سیکٹر کی ذمہ داری کے تحت کلیئر پاتھ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے تعاون سے ڈینٹسٹ کو بلا معاوضہ تربیت اور چیریٹی اسپتالوں کو رعایتی قیمت پر جدید ڈینٹل کٹس بھی فراہم کر رہا ہے. اس ادارے کی کامیابی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تحقیق اور معیار پر توجہ دے کر میڈ ان پاکستان کے ٹیگ کو بین الاقوامی سطح پر معتبر بنایا جا سکتا ہے. ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی عالمی درجہ بندی میں مزید بہتری آ گئی ہے. QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2021 کے مطابق نسٹ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نہ صرف مسلسل 5ویں سال پاکستان میں پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنے گزشتہ سال کی درجہ بندی سے 46 پوائنٹ زیادہ حاصل کیے ہیں. نسٹ نے کمپیوٹر سائنس، بزنس مینجمنٹ اور سوشل سائنسز، حیاتیات، طبیات، فلکیات، ریاضی، کیمسٹری کے علاوہ الیکٹریکل، مکینیکل، ایروناٹیکل، مینوفیکچرنگ اور کیمیکل انجینئرنگ کے شعبوں میں عالمی درجہ بندی میں بہتری دکھائی ہے. PHA کے زیر اہتمام سالانہ جشن بہارہ میلہ لاہور کے جیلانی پارک میں سج گیا ہے. اس میلے کا احوال بتا رہی ہیں لاہور سے وردہ سلیم. جیلانی پارک بنا شہریوں کی توجہ کا مرکز، جہاں صوبوں کے ثقافتی رنگ دکھائی دیتے ہیں. میلے کی خاص بات، میلے میں ماڈل گاؤں کے ذریعے پنجاب کے رنگ اور ثقافت کو اجاگر کیا. کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کی ثقافت کو ایک جگہ پہ یکجا کریں. کووڈ کے بعد لوگوں کو میرے خیال سے 1 سال کے بعد موقع ملا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں اور انجوائے کریں. جشن بہارہ کے میلے میں آنے والوں کے لیے خصوصی طور پر مختلف کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. میلے میں نہ صرف لاہور بلکہ صوبے بھر سے لوگ شرکت کر رہے ہیں. سب کو کہوں گا کہ آئیں ادھر جشن بہارہ کے میلے میں انجوائے کریں. اتنا ڈیکوریٹ ہوا ہے، ہم نے اتنے مزے والے جھولے دیکھے ہیں. ادھر پنجابی کپڑے بھی ہیں، بلوچی کپڑے بھی ہیں. میں نے شوز بھی کافی زیادہ دیکھے. آئی فیل ویری ہیپی. PHA کی جانب سے جشن بہارہ کا میلہ ایک خوبصورت روایت بن چکا ہے. میلے کے افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا جسے لوگوں نے خوب سراہا. میلے میں شہری تمام صوبوں کی ثقافت سے محظوظ ہوئے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. خیبر پختونخوا میں جامعات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے بارے میں اجلاس معاون خصوصی اعلیٰ تعلیم کامران بنگش کی صدارت میں پشاور میں ہوا. اجلاس میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کو سولرائز کرنے کی منظوری دی گئی. اس موقع پر کامران بنگش نے کہا کہ دیگر 9 جامعات کو بھی سولرائز کریں گے. کامران بنگش نے کہا کہ مساجد، مدارس، ٹیوب ویل، سرکاری دفاتر بھی شمسی توانائی پر لائیں گے. پنجاب بھر میں 7 مختلف کیٹیگریز کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت مقابلے جاری ہیں. آرٹس کونسل کے زیر اہتمام بہاولپور ڈویژن کے مقامی نوجوان آرٹسٹوں نے فن کے جوہر دکھائے. تفصیل شراز دورانی سے. بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع رحیم خان، بہاول نگر اور بہاولپور میں منعقد کیے گئے منفرد نوعیت کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں 15 سے 35 سال کے 300 سے زائد مرد و خواتین آرٹسٹوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. پروگرام کے تحت موسیقی، آلات موسیقی، مصوری، شاعری اور کہانی نویسی کے شعبوں میں ضلعی سطح پر مقابلوں کا انعقاد ہوا. مقابلے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے اس اقدام سے مقامی سطح پر باصلاحیت نوجوانوں کو اپنے فن کے اظہار کا بہترین موقع ملا ہے. یہاں ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ بہاولپور کا پروگرام کروایا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ بہاول نگر اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں 2 کمپٹیشن کروا لی ہیں. ان کو کمپائل کر کے ہم لوگ پھر ڈویژنل پروگرام ایک ترتیب دیں گے. اس میں زیادہ تر پاکستان میں گرینری ہے، خوبصورتی ہے، اسی کو بنانے کی کوشش کی ہے. فن مصوری کے مقابلے میں نوجوانوں نے ذہنی اختراع کے ذریعے مختلف پینٹنگز تیار کی. ان پینٹنگز کے ذریعے خوبصورت پاکستان کی دلکش وادیوں، تاریخی عمارتوں، لہلہاتے کھیتوں، چہچہاتی چڑیوں اور ریت کے ٹیلوں کی انتہائی محنت سے منظر کشی کی گئی. مقابلہ تو کافی ٹف ہے کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بنایا. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اگلے مرحلے میں منفرد دستاویزی فلمز کی تیاری اور ہینڈی کرافٹ کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا. ان مقابلوں میں ضلعی سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوان شریک ہو سکیں گے. کسی بھی خطے کے نوجوانوں کی شخصیت سازی اور ذہنی آبیاری کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر نوجوانوں کو فن کے اظہار کا مؤثر پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور. پشاور میں BRT سروس کے کامیاب اجرا کے بعد اب صوبائی سائیکلنگ شیئرنگ سسٹم کا آغاز بھی بہت جلد کیا جائے گا. تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے انور اللہ خان.
जो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। DRT सर्विस की कामयाब आगाज के बाद जो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम को जल्द अवाम की वसी तर मफाद में शुरू किया जाएगा। ट्रांस पेशावर की जानिब से जो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शहर में कायम जो बाईसाइकिल डॉकिंग स्टेशन पर जो बाईसाइकिल पहुंचा दिए गए हैं। जो बाईसाइकिल सिस्टम में 360 जदीद साइकिलें शामिल हैं। सिस्टम में शहरियों के लिए 3 मखसूस पैकेज बनाए गए हैं। जो बाईसाइकिल इस्तेमाल करने वाले सारिफ को हर पैकेज में पहले 30 मिनट मुफ्त सर्विस मुयसर हो सकेगी, जबकि इसके बाद वक्त के मुताबिक मखसूस किराया काटा जाएगा। BRT के स्टेशन पे जाके आप अपना जू कार्ड इस साइकिल सिस्टम के हवाले से एक्टिवेट करा सकते हैं और एक्टिवेट कराने के बाद आपने 3000 जो सिक्योरिटी है इसकी जो काबिल वापसी है वो जमा कराएं। उसके बाद आप जू बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम से मुस्तफीद हों। जू बाईसाइकिल सिस्टम से हर मकतबा फिक्र के लोगों को मुफीद, माहौल दोस्त और सेहतमंद ज़राए ट्रांसपोर्ट मुयसर आ सकेगा। जो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम अपनी नोयत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बदौलत न सिर्फ पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल में खातिर खात कमी देखने को मिलेगी, बल्कि फिजाई आलूदगी के रोकथाम में भी मददगार साबित होगा। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। हाथों से बनाए गए मलबूसात और दीगर इस्तेमाल की अशिया की फरोख्त के लिए हरिपुर में करियर मेले का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं आसिम खान। हरिपुर में कलाबाद टाउनशिप के वोकेशनल सेंटर में कैरियर फेयर का एहतमाम हुआ, जिसमें हजाराबाद से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। कैरियर फेयर के मेहमान खसूसी इंजीनियर सैयद सजाद अली शाह और इंजीनियर मोहम्मद करीम थे। प्रोग्राम में हजाराबाद से हर मकतबे फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। इवन इन हरिपुर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो हमारा एक सेक्टर है जिसे हम होम शेफ्स कहते हैं, वहाँ से लोग क्या घर में बैठ के खाना शाना पका सकते हैं और फिर सर्विस प्रोवाइडर हम होते हैं। हमारा बेसिक जो मकसद है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। वो स्टूडेंट्स, वो लोग जिनके पास तालीम नहीं होती लेकिन उनको हम हुनर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक छोटे शहर हरिपुर के अंदर ख़वातीन की ट्रेनिंग, ख़वातीन की स्किल डेवलपमेंट और ख़वातीन की जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसके लिए ये एक बहुत ग्रां कदर खिदमत है जो ये गवर्नमेंट वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दे रहा है। जो स्टूडेंट्स हमारे करंट बैच में है और जो लोकल कम्युनिटी है, बेसिकली ये उनके लिए हम लोगों ने अरेंज किया है। ऐसे फेयर सेंटर्स के क़याम से ख़वातीन को ग्लोबल विलेज तक रसाई फराहम होती है। आसिम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गिलगित बल्तिस्तान का अजीम कला खरपूचो अपने सीने में सैकड़ों तारीखी और तहजीबी दास्तानें छुपाए हुए है। कलों का बादशाह कहलाने वाला ये कला बल्तिस्तान के मासी और अजमत का अमीन है। तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। कराकरम के पहाड़ों में कई गैर मामूली तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जबकि कई दास्तानों तक महदूद रह गई हैं और बच जाने वाली इमारतें तारीखी विरसा हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीखी इमारतों में बहुत सारे पुराने किले शामिल हैं, जिनमें अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, किला शिगर, किला खरपचो, हपुलो पैलेस और चकचन मस्जिद नुमाया है। स्कर्दू शहर से 40 मीटर की बुलंदी पर दरियाई सिंध के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़ई खरपचो को किला स्कर्दू भी कहा जाता है, जहां से दरियाई सिंध और स्कर्दू शहर का नजारा नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत लगता है। किला खरपचो कदीम फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। किले को इब्तिदा में मकबून खानदान के नामवर राजा बुखार ने तामीर किया था, जिसके बाद 16वीं सदी में अली शेर खान अंचन ने इसे तोसी दी। किले का अंदाज़ तामीर जाहिर करता है कि इसे रिहायशी मकसद की बजाय दिफाई मकसद के लिए तामीर किया गया था। अपने फन तामीर, दुश्वार गुजार रस्तों और हैरत कदम की वजह से इसे कलों का बादशाह भी कहा जाता है। किले में एक आलीशान मस्जिद, सिपाहियों के लिए बैरकें और एक जिंदान भी मौजूद था। मुकामी लोगों के मुताबिक इब्तिदा में किले तक रसाई के लिए सिर्फ जेर जमीन रास्ता बनाया गया था। महल में मुख्तलिफ अक़साम के संग मरमर का काम इस करीने से किया गया था कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो जाते। 1840 में डोगरा फौज के हमले के बाद किले में गुमसान की जंग हुई और फिर इसे आग लगा दी गई, लेकिन खरपचो अहम दिफाई मोर्चे के तौर पर नाकाबिले तस्खीर रहा। मुतादिद गैर मुल्की सयाहों ने अपने किताबों में खरपचो का तज़किरा करते हुए इसके फन तामीर को खूब सराहा। ये किला आज भी बल्तिस्तान के माजी की अजमत रफ्ता के गवाह के तौर पर मौजूद है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
عالمی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کریں، ایران نے اہم جوہری امور پر بات چیت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق ویانا میں عالمی جوہری توانائی کے ادارے نے کی۔ اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رفائی گراسی نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران نے کئی اہم وضاحت طلب امور پر مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ کے جوہری امور کے حوالے سے جوہری معائنہ کاروں کی جانب سے سلسلہ وار ملاقات کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے، اور اس پیش رفت سے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور اس حادثے میں 11 فوجی تابحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ وزارت دفاع کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے کا یہ واقعہ جنوب مشرقی صوبہ بطلس میں پیش آیا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ السلام علیکم، سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 1 ٹائی میں جاپان کو پاکستان کے خلاف 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے پہلے روز دونوں انفرادی مقابلے جاپان کے نام رہے۔ پہلے میچ میں مہمان ٹیم کے یوسوکی واتانوکی نے عقیل خان کو سیٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں جاپان کے کائچی یوشیدا نے قومی ٹینس اسٹار اسام الحق قریشی کے خلاف سخت مقابلے کے بعد کامیابی سمیٹی۔ یوشیدا نے 6-4 اور 7-6 سے میچ اپنے نام کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 1 ڈبلز اور 2 ریورس سنگلز کل کھیلے جائیں گے۔ پی ایس ایل ملتوی ہونے پر غیر ملکی کھلاڑیوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ دوبارہ شروع ہونے پر پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ شائقین کرکٹ مایوس نہ ہوں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بین کٹنگ نے کہا کہ جب ٹورنامنٹ بحال ہوگا تو اچھی کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ Just a message to the fans that although the competition is now postponed, I don't want you guys to lose hope. You know, in this competition we were probably one win away from getting a bit of a ball rolling in terms of getting some momentum and winning, just like we did last night. So hopefully when the competition resumes, we can get back on it and potentially make those finals. جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر ڈیل سین نے کہا کہ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان واپس آؤں گا۔ Really excited to come back here, and 5 games left for the season for Quetta. Let's hope that we can get back here and finish the tournament off in the next couple of months, sometime this year hopefully, and I'm really excited to come back here, and 5 games left for the season for Quetta. We've broken the momentum now, we're getting a roll and have some wins and hopefully have a final at some point this year. پی سی بی نے کرونا کے کیسز بڑھنے کے باعث پی ایس ایل 6 کا ایڈیشن جو ہے اس کو ملتوی کر دیا تھا۔ کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے چوتھے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 50 رن سے ہرا کر 5 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی ہے۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 156 رنز بنائے۔ ایرن فنچ 79 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے 4 چھکے اور 5 چوکے لگائے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے ایش سعودی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم 18.5 اوورز میں 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کائل جیمیسن 30 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ فاتح ٹیم کی طرف سے کین رچرڈسن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 5واں اور آخری میچ 7 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ سہ ملکی سیریز کے لیے پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 19 رکنی ٹیم کی قیادت نثار علی کریں گے۔ 4 ریزرو کھلاڑی بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ ایونٹ 2 سے 8 فروری تک بنگلہ دیش میں جاری رہے گا، جس میں میزبان بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ روٹرڈیم ٹینس ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا۔ ہنگری کے مارٹن فکسووکس اور امریکہ کے ٹامی پال نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیدرلینڈز میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں مارٹن فکسووکس نے اسپین کے الجینڈرو ڈیبڈووچ فوکینا کو ہرا دیا۔ فکسووکس نے فوکینا کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ امریکہ کے ٹامی پال نے قزقستان کے الیگزینڈر ببلک کو 6-7، 6-3 اور 6-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں مارٹن فکسووکس کا مقابلہ امریکہ کے ٹامی پال سے ہوگا۔ ایتھلیٹک بلباؤ نے اسپینش فٹ بال کپ کوپا ڈیل رے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ویلنسیا میں کھیلے گئے سیمی فائنل کے دوسرے لیگ میں بلباؤ نے لیوانتے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ کھیل کے 17ویں منٹ میں لیوانتے کے راجر مارٹی نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ 13 منٹ بعد بلباؤ کے رال گارشیا کے گول نے مقابلہ برابر کر دیا۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اضافی وقت میں بلباؤ کے ایلیکس
ड्रेंगर ने फैसलाकुन गोल करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल मार्का बार्सिलोना और एथलेटिक बिलबाओ के दरमियान 17 अप्रैल को सेविला में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। चेल्सी ने दिफाई चैंपियन टीम पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर है और इस नाकामी के बाद रेड्स का चैंपियंस लीग खेलने का ख्वाब खतरे में पड़ गया। दूसरी जानिब अतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए में इंटर मिलान ने पार्मा को हराकर पॉइंट्स टेबल खेलों से ताही अब अपने चलते हैं मेंडस की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। और अब कुछ मौसम का हाल आपको बताएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम शाम और रात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत लेह -6, कालाम, गोपत -1 और रस्तोर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब मुल्क के अहम शहरों के कम से कम दर्ज हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। सदफ अली खान और रिजवान अली अहमद को हमारी न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुनिया का खूबसूरत खित्ता मकबूजा जम्मू कश्मीर, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल है और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन रहा है, इस वक्त जदीद दुनिया के तवील तरीन भारतीय मुहासरे में है, जहां दुनिया के बदतरीन काले कवानीन के साथ साथ फौजी, रियासती और अदालती दहशत गर्दी उरूज पर है। गैर कानूनी काबिज भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ अपने जंगी जुराइम पर पर्दा डालने के लिए पूरी दुनिया में झूठा प्रोपेगंडा कर रहा है और अपने तिजारती पार्टनर्स के भारत नवाज मखसूस लोगों को बुलाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये सब झूठ है। ना वहाँ अमन है, ना पाबंदियों में कोई कमी है। कश्मीरी अवाम तवील मुहासरों और गैर एलानिया फौजी कर्फ्यू में नाकाबिले बयान पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर इस बारे में कहती हैं, We continue to monitor the situation in Indian administered Kashmir, where restrictions on communications and clampdowns on civil society activists remain of concern. Despite the recent restoration of 4G access for mobile phones, the communications blockade has seriously hampered civic participation as well as business, livelihoods, education, and access to health care and medical information. Rights against human rights offenders in October and November exemplified the continued restrictions on civil society and resulting impact on the rights of the people of Kashmir to impart and receive information and to engage in free, open debate on government policies affecting them. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन पर भरपूर अंदाज में जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी को रोकने और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेकर अमली इक़दामात करे। गैर कानूनी काबिज भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जो इक़दामात कर रही है, उनका भी नोटिस ले। Countries endorsing objective criteria and advocating prevention mandate cannot remain silent on Kashmir, because doing so will further embolden India to intensify its state-directed repression against Kashmiri civilians. Continued silence will also discredit the lofty human rights principles that countries claim to uphold.
Failure to hold India accountable for human rights abuses in the occupied territory will erode the credibility of this Council, its members, and the global human rights agenda. We therefore urge the High Commissioner to exercise the prevention mandate and publish an updated report on Kashmir based on human rights merits and objective criteria. मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी काबिज भारतीय फौज के मुजालिम घर घर तलाशी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी हकूक के कारकुनों का जमीनी हकाइक के बारे में कहना है। 5 अगस्त के बाद इन्हें 36,000 और ट्रूप्स लाइया, क्योंकि कश्मीर इज द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, तो उसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो उनके हैं वो बहुत बढ़ गए। तो ऑपरेशन वो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है फेयर का। फेयर किस बात का फेयर? कहीं जो ये लोगों को अरेस्ट करते हैं, जो ये यूएपी में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जो जवान लोग जो है वो फेसबुक पे अगर कुछ लिखेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, जर्नलिस्टों को एफआईआर हुआ है यूएपी में, राइट। जो बाकी जो डिसेंट होता है, मतलब अगर ये हालत ये है कि जो डोमिसाइल एक्ट है उसके खिलाफ भी अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा जो एक डेमोक्रेटिक राइट है उसके खिलाफ भी एफआईआर होगा। नस्ल परस्त भारतीय हुकूमत ने दुनिया को धोखा देने के लिए तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना नाजायज गासिबाना कब्जा बरकरार रख सके और तहरीके आजादी को कुचल दे। लेकिन कश्मीरी लाखों जानों की कुर्बानियां देकर जुल्म की भट्टी में अब कुंदन बन चुके हैं। कश्मीरी कौम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपने बुनियादी हकूक और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं और आज नहीं तो कल वो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्चू खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी। फूलों का देश पेशावर और तहजीब व तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर गुलाब खैल का रबाब, जब ये दोनों महकते हैं तो खुशबू की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में बिखर जाते हैं।
हमारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर।